کہ یہ سلسلہ پسند تھا، علی جنگ پسند تھا، جھوٹو آدھی حدیث بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے، پوری حدیث انہوں نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے. امر میرا دیکھو یہ شخص نہ کہہ رہا کہ تم لوگ جو ہے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو کہ وہ صلح کرنے والے تھے، لڑائی سے اجتناب کرنے والے تھے، جبکہ وہ صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے آئے تھے. جھوٹ بولتا ہے مکار. یہ صحیح بخاری میں کہا کہ پارٹ 2 لڑنے کے لیے آئے تھے؟ ہاں صحیح بخاری میں کدھر ہے کہ وہ پارٹ 2 لڑنے کے لیے آئے تھے؟ ٹھیک ہے ایک لشکر لے کر آئے تھے، لیکن کیا جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تھے کیا ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم جا کے لڑائی کریں گے؟ دیکھیے ہمیں ایسی روایات ملتی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے صلح کی کوشش میں تھے. یقیناً صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی طرف مائل تھے، انہوں نے بھی پیشکش کی، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ شروع سے وہ تو اپنے والد صاحب کو بھی روک رہے تھے، خود کیسے لڑیں گے؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا. پارٹ 2 کہہ رہا. ارے پارٹ 1 لڑنے کے لیے قائل نہیں تھے. حسن رضی اللہ عنہ جس کو یہ پارٹ 1 سمجھتا ہے اس کے حق میں نہیں تھے، اس لڑائی کے خلاف تھے. حسن رضی اللہ عنہ پارٹ 2 لڑنے کہاں سے آ جائیں گے؟ اب دیکھیں میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب وہ خلیفہ بنے جو ہے طبقات ابن سعد کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379، بالکل صحیح روایت ہے. کہتے ہیں کہ اجتمع الناس الى الحسن من علی رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح سے یہ طبقات ابن سعد میں ہے، اشریہ میں ہے، کئی کتب میں ہے، سند اس سے صحیح ہے. کہتے ہیں کہ اجتمع الناس الى الحسن من علی رضی اللہ عنہ بعد وفات علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لوگ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے، ان کو خلیفہ بنایا. فخطبہم، تو حسن رضی اللہ عنہ ان کو خطبہ دیا. یہ ابھی دیکھیے یہ صفین وغیرہ جو کہہ رہا نا، صفین پارٹ 2 سے پہلے کی بات ہے. خطبہ دیا. فحمد اللہ عز وجل واثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال، اور پھر کہا، ان کل ما هو آت قریب وان امر اللہ عز وجل واقع ما له من دافع ولو کرہ الناس، اور کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے قریب، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. ولو کرہ الناس، گرچہ لوگ اس کو ناپسند کریں. دیکھیے ان الفاظ میں یہ خود اشارہ فرما رہے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ گرچہ کچھ لوگوں کو ناگوار ہو گزرے، لیکن جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ صلح کی تمہید ہے. یہ خود صلح کے بارے میں سوچے. بلکہ اگلا جملہ کتنا واضح ہے، کہہ رہے ہیں وَإِنِّي مَا أُحِبُّ أَنْ أَلِيَ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدِ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَزِنُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ. کہا کہ میں امت محمد کی حکومت میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک دانے کے برابر بھی مجھے حکومت نہیں چاہیے. یحرق فیہ، اگر اس میں لوگوں کا خون بہتا ہے. کتنی واضح بات ہے، کتنا واضح طور پر حسن بن علی رضی اللہ عنہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت مجھے ایک دانے کے برابر بھی، چھوٹا سا ایک قطرہ خون بھی بہ کر اگر یہ حکومت ہم کو ملتی ہے، ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے. اور یہ شخص کہنا چاہتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ بھی لڑنا چاہتے تھے. حسن رضی اللہ عنہ تو صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ایک قطرہ بھی اگر خون بہتا ہے اس حکومت سے جو مجھے سونپی جا رہی ہے، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جو حکومت اپنی بقا کے لیے مسلمانوں کا خون مانگتی ہو، لڑائی مانگتی ہو، قتال مانگتی ہو. ایسی حکومت مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چاہیے. تو یہ ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی شخصیت. وہ شروع ہی سے اسی کوشش میں ہیں کہ یہ جنگ و جدال، یہ قتل و غارت گری یہ ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے. اسی لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے پیشکش کی فوراً انہوں نے قبول کیا. وہ نہ پیشکش کرتے تو خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیشکش کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ پہلے سے پلان کر کے رکھے ہوئے تھے، پہلے سے ان کے ذہن میں یہی بات تھی. وہ لوگوں کو جب ان سے بیعت لی جا رہی تبھی کیا بولتے تھے؟ بہت ہی واضح بولتے تھے کہ تم لوگ عہد کرو کہ میں جس سے لڑوں گا تو اس سے لڑو گے، اور تو سالمونی من سالم، تو میں جس سے صلح کروں گا تمہیں بھی صلح کرنا ہوگا. یہ باقاعدہ عہد لے رہے تھے کہ اگر جنگ کروں گا تو جنگ کرنا، لیکن اگر میں صلح کرنا چاہوں گا تو میں صلح کرنا ہوگا. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن پسند تھے.
वो जंग सिफिन पार्ट 2 के हक में भी नहीं थे बंदे, तो पार्ट 1 के हक में नहीं थे, तो पार्ट 2 की बात कहां से कर रहा है? यानी जो पहला जिसको ये मैं तो नहीं कहता पार्ट 1 पार्ट 2, ये शख्स कह रहा ना पार्ट 1 पार्ट 2, तो हसन रदी अल्लाह तआला तो पार्ट 1 के भी हक में नहीं थे जिसको तूने जो है दर्जा बंदी की है, पार्ट 2 तो बहुत दूर की बात है। आगे देखते हैं। उसने कहा कि ये लश्कर मैं देख रहा हूं मुआविया जब तक ये अपने मुखालिफिन को भगाएगा नहीं, वापस नहीं देगा, ये बुखारी के अल्फाज तुमने क्यों नहीं बयान किए? तो फिर मुआविया ने कहा कि क्या करें, रदी अल्लाह अन्हु कहना क्या रदी अल्लाह अन्हु छाट देता है। भाई उन अल्फाज में ये है कि लड़ाई होगी, उन अल्फाज में ये नहीं है कि ये जो है पूरा शिकस्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, उन अल्फाज में ये उनका खुलासा ये है कि भाई दोनों तरफ खून खराबा होगा, कौन बचेगा, यानी क्या होगा इस उम्मत का इतना खून खराबा होगा, ये बयान करना मकसूद है। और यकीनन उन्होंने सुलह की बात की मुआविया रदी अल्लाह तआला ने, लेकिन हसन रदी अल्लाह तआला ने भी सुलह पसंद थे, वो पहले से वो भी इसी प्लान में थे, यही बात कर रहे थे, बल्कि बाद रवायत में मुकम्मल सराद भी है, एक रवायत में आपके सामने पेश भी कर चुका हूं। आगे देखते हैं क्या करें, उनका सुलह करते हैं। और सूरतुल अनफाल में लिखा है अगर जंग में काफिर भी सुलह ऑफर करे ना तो कर लेना, नबी इस्लाम ने की थी सुलह हुदैबिया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है इन इब्नी हादा सईद, सही बुखारी की, कि मेरा ये बेटा सरदार है, उसमें सुलह की पूरी जो है फजीलत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, यानी उनकी फजीलत बयान की। वो हदीस भी बताती है कि उस सुलह में सबसे बड़ा किरदार किसका है, हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का। मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में नहीं, वो हसन रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। वो हदीस जो सही बुखारी की हदीस है वो खुद अपने आप में इस बात की दलील है, क्योंकि अल्लाह के नबी अपने हसन, अपने बेटे हसन को, अपने नवासे हसन को कह रहे हैं कि मेरा ये बेटा, इसके जरिए सुलह होगी, सही बुखारी के अल्फाज में कि इसके जरिए उम्मत में जो है सुलह होगी। वरना अगर जिस अंदाज से ये बयान ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही सिर्फ जिम्मेदार हैं सुलह के, यानी उन्होंने पेशकश की, उन्होंने सुलह की, और ये हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो अमन पसंद थे, जो सुलह पसंद थे, वो जो फजीलत की बात है वो हसन रज़ी से छीनना चाहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत इनको जचती नहीं है, ये लोग उनसे दुश्मनी पाल के बैठे हुए हैं। बल्कि जब उन्होंने सुलह की थी उस वक्त भी इनके बाप दादाओं ने बहुत बुरा भला कहा था हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। इसलिए ये लोग हसन रज़ी अल्लाह के अमाल को, उनकी कुर्बानियों को पसंद नहीं करते हैं। कितनी ढटाई के साथ ये माज़अल्लाह हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब कर रहा है कि वो लड़ने जा रहे थे, बताइए कितनी ढटाई के साथ मंसूब कर रहा है। ये सुलह अगर मुआविया इब्न अबी सुफियान हजरत अली को ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। और ये एक शख्स कह रहा है कि अगर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह ऑफर करते अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तो कबूल करते। क्या ऑफर नहीं किया था? क्या उन्होंने नहीं कहा था? भाई वो तारीख इब्न असाकिर की रवायत है, उन्होंने कहा कि ये जो कातिलीन उस्मान हैं हुकूमत नहीं मांग रहे थे, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हुकूमत नहीं मांग रहे थे, सिर्फ कातिलीन उस्मान का मामला मांग रहे थे, बल्कि मांग भी नहीं रहे थे, कह रहे थे कि आप कत्ल कर दो या हमारे हवाले कर दो। इससे बेहतरीन ऑफर क्या हो सकती है भाई सुलह की? तहकीम का वाकया पेश आया, उसमें भी वो तैयार थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह नहीं चाहते? अरे भाई वो तो अपने डिफेंस में आए थे, वो तो लड़ना ही नहीं चाहते, सुलह तो बहुत दूर की बात है, सुलह तो बात की बात है, वो तो इब्तिदान लड़ना ही नहीं चाहते थे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने तो अपने दिफा में जो कुछ किया है, उन पर कार्रवाई की है हुकूमत की तरफ से। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई इक़दाम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना मुतालबा रखा है, अपनी मांग रखी है। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी मांग रखी है कि उस्मान जो तीसरे खलीफा थे उनको कत्ल किया गया, उनका क़िसास चाहिए, ये उनकी मांग थी, उनकी डिमांड थी बस। बाकी उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ तो हम कार्रवाई कर देंगे, अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे, ऐसा मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं किया। और जब लोगों ने समझाया दोनों से बात करनी चाहिए, तारीख इब्न असाकिर की रवायत है, इमाम ज़हाबी ने भी सियर में नकल किया, सनद उसकी हसन है, उसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पर, बल्कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी एक रवायत है, उसमें भी वही मफहूम है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपना मौक़िफ़ रखते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमसे ज्यादा खिलाफत के हकदार हैं, यानी वो खलीफा रहे, कोई मसला मामला नहीं है, हमें बस खून उस्मान का क़िसास चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यहां मामला क्या है? हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खून उस्मान के क़िसास तो दूर की बात है, पूरी खिलाफत ही दे रहे हैं, बताइए, पूरी खिलाफत ही सौंप दिया और कातिलीन उस्मान का मामला भी सौंप दिया, सब सौंप दिया। सुलह में ये हरगिज़ नहीं कहा कि आप जो है उस्मान के कातिलों को छोड़ देना, बिल्कुल नहीं।
सुलह हुई है हसन रदी अल्लाह तआला से, सिर्फ एक बात कही है जो सही बुखारी में है कि ये जो माल का मामला है, हमें जो माल मिलता था वो मिलता रहना चाहिए, वो बंद हो जाएगा तो फितना फसाद होगा, इसलिए वो बंद ना होने पाए। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कबूल किया। बाकी हुकूमत सौंप दी, खिलाफत सौंप दी, और वो जो मसला था खून उस्मान की क़िसास का मामला वो भी सौंप दिया, और बाद में मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुकूमत संभाली, और जो भी बचे हुए थे, जो मर गए, जो बच गए उनको उनके अंजाम को पहुंचाया, उनसे क़िसास लिया मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने। अबू नुईम वगैरह की रिवायत है। तो कहने का मतलब यह है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा से, वो ऐसा नहीं है कि वो सुलह नहीं करना चाहते थे, वो लड़ना ही चाहते थे, ऐसा नहीं है। अली रज़ी अल्लाह के दौर में भी वो लड़ना नहीं चाहते थे, जंग उन पर मुसल्लत की गई थी, जंग उन पर मुसल्लत कर दी गई थी, और वो डिफेंस के लिए जो है मजबूर थे, वरना उन्होंने शुरू में कोई इक़दामी कार्रवाई नहीं की, कोई जंग उनकी शुरुआत उनकी तरफ से, मुआविया रज़ी अल्लाह की तरफ से नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। का मतलब ही है शराइत के ऊपर जी। सुलह हुदैबिया में इम्प्लाइड है कि शराइत है, दोनों तरफ जब पार्टियां बैठती हैं सुलह किसी ट्रीटी के ऊपर होती है। वो मैंने इनकी सुलह हसन के पीछे जो छुपते थे, फिर मैंने बताया वो मनसूख हो गई, किस शर्त पे अमल नहीं हुआ, सिवाय एक जो आलू भाई। ये देखो कितना पागल आदमी कह रहा है कि मनसूख हो गई। कैसे मनसूख होगी? तेरे पर वही आई है, हाँ? फरिश्ता आके बता गया मनसूख हो गई सुलह। ये बंदा कह रहा है मनसूख हो गई। किसने तुझको बताया मनसूख हो गई? सुलह हसन कैसे मनसूख होगी? तू कौन होता मनसूख करने वाला भाई? हाँ? किसने आके बता दिया कि सुलह जो है मनसूख हो गई? इसके लिए ये बंदा सहारा कह लेता है कि वो झूठी शर्तें, जिसका हवाला सही सनद से ये बंदा आज तक नहीं दे सका, आज तक कोई सही सनद नहीं पेश कर सका कि सुलह में ऐसी कोई शर्त रखी गई थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद ये खिलाफत हमारे खानदान में आ जाएगी या मुझे मिल जाएगी, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई ना। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। ये झूठी बातें, ये मन घड़त बातें हैं जो ये बंदा, ये बदनसीब अपने सर पे लाद के कूड़ कबाड़ ढो रहा है। ये नालायक ये झूठी बातें अपने सर पे लाद के ढो रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है, वरना ये इसकी पूरी पार्टी, इसकी पूरी दुनिया के अहले तशय्युह को, रवाफिज को जमा कर ले, कोई एक सनद पेश कर दे, सही सनद, जिसमें यह हो कि सुलह के वक्त यह शर्त रखी गई थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खिलाफत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की जाएगी या उनकी फैमिली में जो है मुंतकिल की जाएगी। ऐसी कोई शर्त हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं रखी थी। तो माले गनीमत में अल्लाह ने हिस्सा रखा था, सूरतुल अनफाल में वो मिलता था, बाकी सारे के सारे मामला वैसे ही जारी रहे। और सबसे बड़ी बात करबला हो गई। हसन ने इसलिए सुलह की थी कि मेरे भाई को यूं कत्ल किया जाए। कितना अजीब आदमी है। करबला का वाकया मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद पेश आया, और ये बंदा उसको सुलह से जोड़ रहा है। और करबला का वाकया मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद पेश आया, उसमें मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या कसूर है? ये बिल्कुल रवाफिज की तरह से कि वो सारा करबला का वाकया ले जाते, मुआविया न सिर्फ मुआविया बल्कि ले जाके ऊपर के खुलफा तक जोड़ देते हैं उसको। वही बंदा ये भी करता है, वो पूरा वाकया करबला का बार बार वो पेपर उठाएगा, करबला करबला करबला, और वो सारे सहाबा को से उसको लिंक करता चला जाएगा। तो ये बाद में जो वाकया करबला पेश आया उसका उस सुलह से क्या ताल्लुक है? क्या मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला का वाकया बर्पा किया है या यजीद ने बर्पा किया है? हरगिज़ नहीं। ये तो उन बदमाशों ने बर्पा किया है जो हमेशा खुराफात करते थे। ये उन कूफियों ने, उन बदमाशों ने, जिनको, जो सुलह से राजी नहीं थे, जो सुलह से बिल्कुल राजी नहीं थे, जिन्होंने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है के ताल्लुक से बदज़बानी की थी जब उन्होंने सुलह की थी, उन्हीं कूफियों की सारी कारस्तानी है, उन्हीं का किया धरा है सब कुछ। उस वक्त के सहाबा, उस वक्त के अहले बैत, सबने कहा कि इन कूफियों का किया धरा है, तो उनका मामला है, उसका मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उनकी फैमिली से क्या ताल्लुक है? इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।